Hello, friends. Welcome back again on the Consistency in Silence YouTube channel. So, in today's class, we will be going to discuss our next topic, that is insolation. This particular word can be not bifurcated but trifurcated. अपने आप से हम एक नया शब्द इजाद करेंगे. So, this can be divided into three parts: in, so, and lesion. Incoming solar radiation. So if you combine these three objects together, then we have the term of insolation. Incoming solar radiation. Now before going to the actual topic, we have to discuss basically the factors which affect the insolation, and we will be covering holistic topic of insolation, and we will also study some very core concepts of geography like latitudes, longitudes, इक्विनॉक्सेस, सोल्स्टाइसेस. बट बिफोर डैट एक बेसिक एनसीईआरटी की टेबल है, बहुत बेकार सी, वो देख लेते हैं. So as you can see, we are showing the visible light, Vib-Gyor. The tolerance level or limit is 400 nanometer to 700 nanometer, and this is the visible range. तो ये सब हम सबको पता है, थोड़ी सी ट्रिक्स होती हैं याद करने की. नाउ दिस इज रेड एंड दिस इज वॉयलेट. रेड के बाद क्या आना चाहिए, अल्ट्रा वायलेट या इंफ्रा रेड. देखिए रेड है तो अब आएगा इंफ्रा रेड रेडिएशन. इफ यू हैव स्टडीड द GS1 सोसाइटी पेपर, तो उसमें हम एक वर्ड पढ़ते हैं IMR, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट. तो यहाँ लगा दीजिए IMR. infrared rays, microwaves and radio waves. Here we have the violet. Then of course the next word is ultraviolet. देखिए अल्फाबेटिकल सीरीज अगर आपको याद है, U, V, X and Y, X rays and gamma rays. Now two possible questions can be formed from here in the prelims exam. The first of all is, which of the waves has the longest wavelength? तो wavelength and frequency, these are the two correlated concepts. देखिए बोर्ड पे अच्छी तरह, मैंने कैसे याद किया पहले मैं वो आपको बता देता हूँ. देखिए वी हैव टू रिलेट द ज्योग्राफी सब्जेक्ट्स इन आवर विद आवर रियल लाइफ. सो वेन एवर इफ यू ड्राइव कार और बाइक, वेन एवर यू विल ड्राइव ऑन हाईवेज, वी कैन सी सम ऑफ द साइन बोर्ड्स ऑफ एक्सीडेंट्स एंड मैनी अदर थिंग्स. These signboards have red in their boundary, or they are entirely in red color. Why? Because red color can be seen from a distance. It means red color has the maximum wavelength. It can be seen from the distance. इसकी अगर वेवलेंथ सबसे ज़्यादा है तो इसकी और ज़्यादा, इसकी और ज़्यादा, और इसकी सबसे ज़्यादा. इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, रेडियो वेव. So as we go from here to here, we have the increased wavelength. एक और एग्जांपल देता हूँ मैं. अगर आप फ्रीक्वेंसी की बात करेंगे, so the waves which has the greater frequency will tend to scatter more. Now if you have seen the evening, तो कौन सी कलर की होती है समर्स में? बेसिकली ऑरेंज और रेडिश टाइप होती है. इट मीन्स द वॉयलेट कलर हैज़ बिन स्कैटर्ड. तो ये जितने भी कलर्स हैं ये ज़्यादा स्कैटर हो चुके हैं, एंड नाउ द लास्ट रिमेनिंग इज द रेड कलर, एंड हेंस वी सी द स्काई ऑरेंज और रेड. सो हेंस इफ वी गो फ्रॉम हेयर टू हेयर, वी हैव द इंक्रीज इन फ्रीक्वेंसी. सो वॉयलेट, अल्ट्रावॉयलेट, एक्स रेज एंड गामा रेज. सो दीज आर inversely proportionate objects, the frequency and wavelength. Now let us jump to the main topic, that is factors.
अच्छा, यूवी रेज विल of course heat the earth. We have studied in the previous lecture ozone layer presence in lower stratosphere. It will absorb the UV A, B and C. So this will heat the earth. अभी मैं इसको हीट द अर्थ नहीं बोलूँगा, हीट द एटमॉस्फेयर मान लीजिए, अंडरस्टूड. इसको बोल दीजिए हीट द एटमॉस्फेयर. इंफ्रारेड हीट्स द अर्थ फ्रॉम बीनीथ. अब ये टेक्निकलिटी में कैसे जाएंगे वो हम हीट बजट में पढ़ लेंगे थोड़ा सा, या बाद में देख लेंगे. देखिए, कंफ्यूजन हटाने के लिए मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन यहीं दे देता हूँ. द यूवी रेज आर मोस्टली शॉर्ट वेव्स that are coming from the sun, but some are long waves also. So these UV rays will enter the earth's atmosphere because ozone layer can't block all the UVs. So these short wave radiation will enter the earth's atmosphere and get absorbed by the surface of the earth. The surface of the earth will then reflect back these short wave radiations as long wave radiation. Body ने absorb की short wave radiation. Now the earth will tend to reflect back the long wave radiation. These long wave radiation gets trapped by the GHGs, greenhouse gases. So thus greenhouse gases will not trap the short wave radiation but the long wave radiation that has been emitted from the earth's crust, and hence the heating of the atmosphere is from below. It means earth is heating its atmosphere and not the sun. This is the first point. If you want the applicability of this particular concept, then हमने पिछले क्लासेस में देखा था as we go higher in altitude we will feel more cold, and hence it is yet another practical example that yes, the heating of the atmosphere is done by the earth. तभी तो हम अल्टीट्यूड पे जा रहे हैं तो हमें ठंडा फील हो रहा है. क्यों हो रहा है? अगर सन ही हीट कर रहा होता तो सबसे ऊपर की ज़्यादा सबसे लेयर जो है एटमॉस्फेयर की वो सबसे ज़्यादा गर्म होती, बट आवर ट्रोपोस्फियर इज़ वार्मर. सो दिस इज़ द प्रैक्टिकल एग्जांपल. अब चलते हैं. ये मैंने थोड़ा सा साइड कंसेप्ट बता दिया बिकॉज यू विल गेट कन्फ्यूज, जो मैंने छोटा सा बताया था. फैक्टर्स. ऊपर लिख लेते हैं ताकि भूल ना जाए. एंगल ऑफ सन्स रे कैसी एंगल पे आ रही है. रोटेशन हम अभी पूरा देखेंगे. देन वी हैव द इफेक्ट्स ऑफ एटमॉस्फियर एंड वी हैव द longitudes and latitudes. Also we have the day and night. So here we will start from rotation. We all know earth rotates on its own axis with the angle of 23.5 degrees Celsius from the normal. For this rotation we have applicability. देखिए क्या है, the days and night. Here is the sun और इसकी ये रेज ऐसे आ रही है. Our earth is rotating. दिख रहा है आपको अर्थ रोटेट होते हुए. सो जहाँ भी ये सन की रेज जहाँ भी पेनिट्रेट करेंगे, देयर वी हैव डे एंड उसके अपोजिट साइड में नाइट. नाउ व्हाट विल गिव राइज टू सीजन्स. सो सीजन्स में क्या जाएगा, रोटेशन प्लस रेवोल्यूशन रिवॉल्यूशन. सो दिस गिव्स क्या देता है, वेरिएशन इन डे एंड नाइट. And of course our seasons.
सो व्हाट इज दिस वेरिएशन इन डे एंड नाइट? सी, अगर अर्थ बस रोटेट हो रहा होता अपनी एक्सिस पे, सो द टाइम length of the day as well as the time length of night at each and every point on the earth has to be equal, but this is not the case in practical. So hence we have skipped one of the fundamentals, और वो हमें यहाँ दिखता है variation in day and night. As the earth is rotating on its own axis with a tilted orbit of 23.5 degrees Celsius, as well as the earth is revolving, no, the earth is revolving in an elliptical orbit around the sun. So the combination of both these effects will lead to the variation in day and night. And now we will study the positions of the earth. चाहता था कि एक लगा दें आपके सामने पोस्टर ही, बट हो नहीं पाएगा वो। कोई बात नहीं, हैंडमेड चीज़ें ज़्यादा अच्छी लगेंगी। (23.5°C) कितना हो गया? दिसंबर। सो अर्थ कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 क्वार्टर्स। अर्थ का जो भी ईयर है वो 4 क्वार्टर्स में डिवाइड हो सकता है। द अर्थ विल स्टार्ट इट्स जर्नी फ्रॉम, मान लीजिए इस कंसेप्ट के लिए मान लीजिए यहाँ से स्टार्ट कर रहा है 21 मार्च। 21 मार्च द सन will shine at directly on the equator. What is the equator? Equator is the latitude, or it is a great circle which passes through from the center. So यहाँ से हमारा इक्वेटर पास होता है, और ऊपर इसके नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में 23.5°C पे हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होता है। सदर्न में ऐसा ही एक रेप्लिका नीचे पास होगा इन द सदर्न हेमिस्फीयर विच इज नोन एज ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5°C नॉर्थ सेल्सियस, 23.5° नॉर्थ। कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 23.5° साउथ, और बीच में 0° पे हमारा इक्वेटर है। अभी हम इसको इस वाले सेक्शन में पूरा अच्छी तरह पढ़ने वाले। द सन विल स्टार्ट इट्स जर्नी फ्रॉम हेयर, एंड 21 मार्च इज ऑल्सो नोन एज इक्विनॉक्स। Why? Because the sun is shining directly above the equator, hence we have the equal lengths of day and night. Whenever there is an equality of some objects, we will call it equinox. So hence we have two equinoxes, the September equinox and the March equinox. March equinox को क्या बोलेंगे? वर्नल, और स्प्रिंग इक्विनॉक्स, और इसको ऑटम इक्विनॉक्स। तो इतनी हमारी कारीगरी ख़त्म हो गई। मार्च, अप्रैल, मई, जून, तो ये हमारे पास जून आ गया। जून के बाद जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये सितंबर आ गया। सितंबर के बाद अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये दिसंबर आ गया। दिसंबर के बाद जनवरी, फरवरी, मार्च। तो ये हमारे पास पूरी साइकिल है कि अर्थ घूम रहा है, रिवॉल्व कर रहा है अराउंड द सन। मान लीजिए सन की रेज ऐसे हैं अभी, ठीक है, वैसे तो ऐसे भी होंगे, ऐसे भी होंगे, ऐसे भी होंगी, बट दिस पर्टिकुलर डायग्राम विल इफ़ वी कन्वर्ट इट इनटू 3D, सो ये ऐसे आ जाएगा। तो ये वाला आपके सामने मुंह पे आ जाएगा, सन हमारा बीच में है और ये हमारा बोर्ड पे है। सन रेज ऐसे जा रही है भाई, ड्यू टू द अर्थ टिल्ट एट द 23.5° फ्रॉम द नॉर्मल, the sun will directly shine above the tropic of cancer. मतलब sun rays are directly falling on 23.5° north. समझ में आई? So this will be known as the
summer solstice. And here this all things are regarding the northern hemisphere. We have to take a vantage point. We are considering the southern hemisphere or the northern hemisphere. So all of these things, conceptual understandings are related to the northern hemisphere. southern में सब उल्टा हो जाएगा. Summer solstice. In summer solstice in the northern hemisphere we have the longest day. तो longest day कब आएगा? समझ में आ गया? And after this longest day, now the day's length will reduce when we reach to this September equinox and then December. So here in 22 June we have the longest day in the northern hemisphere. अगर longest day in the northern hemisphere 22 जून को है तो इसका रेप्लिका एकदम पूरा अपोजिट अगर मैं southern hemisphere में चले जाऊँ तो shortest day in the southern hemisphere. याद रखना, shortest day in the southern hemisphere इसका मतलब longest night in the southern hemisphere. समझ में आ गई भाई? the sun rays are at tropic of cancer. ये सब बात समझ में आ गई. मैंने बोला इसको बोलते हैं समर सोल्स्टाइस. सारी चीज़ें नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के बारे में हम बात कर रहे हैं. समर सोल्स्टाइस क्यों बोलते हैं? बिकॉज इट इज़ इंडिकेटिंग द लॉन्गेस्ट डे इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर. मैंने बोला इक्वेटर के नीचे जाते ही एवरीथिंग विल बी अपोजिट. इफ 22 जून इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इज द लॉन्गेस्ट डे, तो इसके नीचे अगर हम सदर्न हेमिस्फीयर में चले जाएं तो 22 जून इन द सदर्न हेमिस्फीयर इज द शॉर्टेस्ट डे, है ना? इफ दिस इज द शॉर्टेस्ट डे इन द सदर्न हेमिस्फीयर इट मीन्स लॉन्गेस्ट नाइट इन द सदर्न हेमिस्फीयर. ठीक है भाई. सो हियर ये सारे कंसेप्ट बाद में खुद ही रिलेट होते जाएंगे, बट मैं आपको बता देता हूँ. वी हैव 24 hour डे in the Arctics. We have 0 hour day. हम सारे डेज पे बात करेंगे, नाइट की बात नहीं कर रहे हम. अगर डे अगर 0 hour की हो गया, अगर डे 0 hour हो गया तो मतलब नाइट 24 hour. तो आप ऐसे समझ जाना. ये बाद में कंसेप्ट आपको सब रिलेट करवा दूंगा मैं, अभी आप बस सीख लीजिए. ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे है सन, इसका मतलब आर्कटिक्स में 24 hour डे होगा. अगर यहाँ 24 hour डे है तो यहाँ 0 hour डे होगा. और इक्वेटर पे तो हमारे पास हाफ हाफ होता है. सन की रेज यहाँ से पड़ रही है, सो दिस विल यू गेट इल्यूमिनेटेड, है ना? ये वाला पार्ट इस साइड वाला इल्यूमिनेट होगा. नाउ द सन will continue its journey to the equinox. Here again the sun will shine at the equator. It means 12 घंटे 12 घंटे 12 घंटे का दिन हर जगह. Now again the earth will continue its journey till December. In December now the sun is shining over the ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 23.5 डिग्री साउथ. सो इसका मतलब इसका रेप्लिकेट हो जाएगा भाई. यहाँ 0 hour का दिन होगा, इक्वेटर पे 12 घंटे का दिन होगा, और यहाँ नीचे 24 hour का दिन होगा. सब हम दिन में करेंगे. देन वापस इक्विनॉक्स पे तो 12 घंटे 12 घंटे 12 घंटे का दिन होगा. भाई 22 दिसंबर the sun is shining at tropic of Capricorn. It means in the northern hemisphere we have the winters, in the southern hemisphere we have the summers. अगर northern hemisphere में winters है इसका मतलब 22 दिसंबर will be the longest night in the northern hemisphere. अगर लॉन्गेस्ट नाइट है नदर्न हेमिस्फीयर में, क्योंकि वहाँ विंटर चल रही है, तो सदर्न हेमिस्फीयर में तो समर्स चल रही है, तो मतलब लॉन्गेस्ट डे इन द सदर्न हेमिस्फीयर. अपोजिट करना है. वापस से समझ लीजिए, जल्दी से एक बार समझा देता हूँ. यहाँ से हम जर्नी स्टार्ट करेंगे 21 मार्च 22 जून 23 सितंबर 22 दिसंबर. हमने 4 भागों में क्वार्टर्स में
अर्थ का हमारा ईयर डिवाइड कर रखा है। अर्थ की जर्नी यहाँ से स्टार्ट होगी, यहाँ इसको बोलते हैं वर्नल और स्प्रिंग इक्विनॉक्स। इक्विनॉक्स मतलब इक्वल डे एंड नाइट लेंथ। द सन विल बी शाइनिंग एट द इक्वेटर, इट मीन्स 12 hour day, 12 hour day, 12 hour day, 12 hour day. The length of the day and night are equal, hence vernal or spring equinox. The earth will travel through its journey and will reach 22 June. The sun is shining at the tropic of Cancer, 23.5 degree north. It means this whole Arctic circle will come in the illumination zone. तो इसका मतलब यहाँ 24 hour डे होगा आर्कटिक सर्कल के पार बियॉन्ड। इक्वेटर पे तो हमेशा 12 hour का डे एंड नाइट होता है, तो हम डेज ले रहे हैं, 12 hour का डे। ये जो एंटार्क्टिक सर्कल है ये पूरा नाइट में शिफ्ट होगा, इल्यूमिनेशन सर्कल से दूसरी साइड शिफ्ट हो गया, तो मतलब 0 hour डे। नदर्न हेमिस्फीयर में अभी समर चल रहा है एंड सदर्न हेमिस्फीयर में अभी विंटर चल रहा है। वाई? बिकॉज द सन इज शाइनिंग एट द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। नदर्न हेमिस्फीयर में समर्स चल रहे हैं, हैंस इट इज अ समर सोल्स्टाइस एंड वी हैव द लॉन्गेस्ट डे इन द नदर्न हेमिस्फीयर। अगर लॉन्गेस्ट डे है नदर्न हेमिस्फीयर में, इसका मतलब शॉर्टेस्ट डे इन द सदर्न हेमिस्फीयर। इसको अगर मैं दूसरे तरीके से कहूँ तो लॉन्गेस्ट नाइट इन द सदर्न हेमिस्फीयर। तो ये आपको दे सकता है, यूपीएससी ने पिछले बार पूछा हुआ है ये क्वेश्चन, पर वो सीधा पूछ लिया था, सदर्न हेमिस्फीयर पे नहीं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे पूछ लिया था। एंड इन ऑल द क्लासेस जो भी कितने भी कोचिंग है वो सारे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का ही बताते हैं ये हमेशा। वापस कंटिन्यूड जर्नी इक्विनॉक्स, द सन इज शाइनिंग एट द इक्वेटर, 12 hour डे हर जगह हो जाएगा। 23 सितंबर ऑटम इक्विनॉक्स बोला जाता है। वापस शिफ्ट टू द 22 दिसंबर। The sun is shining at the Tropic of Capricorn. It means 23.5 degree south in southern hemisphere. It means there is summers in the southern hemisphere and there are winters in the northern hemisphere. अब हम नॉर्दर्न के हिसाब से बात करेंगे यहाँ। विंटर्स इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, विंटर सोल्स्टिस। विंटर है तो लॉन्गेस्ट नाइट कहाँ आनी चाहिए? यस, यहाँ आनी चाहिए। तो लॉन्गेस्ट नाइट ऑफ द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर 22 दिसंबर। इसको अपोजिट मारते हैं। लॉन्गेस्ट नाइट है तो नीचे होगा शॉर्टेस्ट नाइट। अगर शॉर्टेस्ट नाइट को दूसरे तरीके से बोले तो लॉन्गेस्ट डे इन द सदर्न हेमिस्फीयर 22 दिसंबर। एंड दैट्स वाई ऑस्ट्रेलिया सेलिब्रेट्स इट्स क्रिसमस इन द समर डेज। समझ में आई बात? जो भी हम बर्फ़ की और ये सारी फोटोज़ देखते हैं ऑन द क्रिसमस दिसंबर के महीने में, वो कहाँ की देखते हैं हम? यस, वी विल सी द पिक्चर्स ऑफ द यूरोप एंड अमेरिकाज, नॉर्थ अमेरिका की, उन सब की देखते हैं हम। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में 22 दिसंबर को तो क्या चल रहे हैं? समर्स, लॉन्गेस्ट डे। सो दिस वाज ऑल रिगार्डिंग द कंसेप्ट ऑफ रोटेशन। होप्स आपको समझ में आया हो। एक और कंसेप्ट बहुत ही आराम से समझाना पड़ेगा, उससे पहले जल्दी से ले लीजिए एंगल ऑफ सन रे। छोटी छोटी बातें बहुत ही कॉमन लॉजिकल। अगर सन यहाँ शाइन हो रहा है तो इसकी किरणें जो आ रही हैं, द इंसोलेशन कमिंग, यहाँ एक और लिख लीजिए, याद आ गया, एल्बिडो। तो इसकी जो किरणें आ रही हैं, द इंसोलेशन कमिंग will travel short distance, will have an effect on the shorter region and it will warm up more rapidly. Whereas now the sun is here. Now the sun's rays are traveling more distance. So it will cover, ये वाली डिस्टेंस ज़्यादा ट्रैवल कर रही है इनसे, ऊपर से इट विल हैव एन इम्पैक्ट ऑन ग्रेटर एरिया, बट द हीटिंग पावर इज मच लोअर. So this is the second factor of insolation, incoming solar radiation. Length of the day, day and night में length of the day. अगर length of the day बड़ी है so more insolation, like example summers. If length of the day is shorter,
इसका मतलब लेस इंसोलेशन. द अर्थ विल रिलीज हीट मोर देन एब्जॉर्ब. हीट बजट में हम पढ़ेंगे. सो दस एग्जाम्पल विंटर्स. सो ये सब आपको समझ में आ गया होगा. भाई समर्स आ गए हैं तो मच्छर भी बहुत मस्त हो रहे हैं इधर. Effects of atmosphere. Whenever there are more dust particles, more aerosols present in the atmosphere, hence they will scatter more, they will absorb more, they will reflect back more, hence it will affect negatively the insolation. तो जितने डस्ट पार्टिकल्स कम है उतनी ज़्यादा इंसोलेशन है. The effect of albedo. Now what is albedo? I have told you in the previous classes. It is the amount of insolation that is reflected by an object. क्या बोला मैंने? जो भी इंसोलेशन आ रही है एक ऑब्जेक्ट पे, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ रिफ्लेक्टेड बैक इंसोलेशन. अगर 100 यूनिट्स की रेडिएशन मेरे पे आ रही है और मेरी स्किन अगर 80 यूनिट्स रिफ्लेक्ट बैक कर रही है तो व्हाट इज द एल्बिडो? 80. अंडरस्टूड. सो जो इंसोलेशन आ रही है वो नहीं, जो रिफ्लेक्ट बैक हो जा रही है उसको बोलते हैं एल्बिडो. तो हम इसको परसेंटेज में नापते हैं. अगर मेरी स्किन ने 80 यूनिट्स ऑफ इंसोलेशन को रिजेक्ट कर दिया, रिफ्लेक्ट बैक कर दिया, सो माई स्किन हैज़ द एल्बिडो ऑफ 80%. तो इसका एक छोटा सा ग्राफ है. सीरस क्लाउड्स हैव द हाइएस्ट एल्बिडो, देन फ्रेश स्नो, ओल्ड स्नो, डिजर्ट्स, खाने वाला नहीं, डेजर्ट्स. उसके बाद द ग्रासलैंड्स एंड देन द फॉरेस्ट. पर एक सॉइल है, कौन सी? ब्लैक सॉइल, सबसे कम एल्बिडो. सो सीरस क्लाउड्स हैज द हाईएस्ट एल्बिडो, हाईएस्ट रिफ्लेक्टिंग बैक कैपेसिटी. देन द फ्रेश स्नो, ओल्ड स्नो, डेजर्ट्स, ग्रासलैंड्स, फॉरेस्ट. फॉरेस्ट में भी दो टाइप में हो सकते हैं, डेसिडियस और ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट. जितना कम घना फॉरेस्ट उतनी ज़्यादा एल्बिडो. सो पहले डेसिडियस की एल्बिडो ज़्यादा होगी, देन ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, देन वी हैव द ब्लैक सॉइल. सो ये आपके पास टेबल होगी, याद कर लेना. ये डेजर्ट से याद रखना, हम भूल जाएंगे. नाउ एक और ये भी फैक्टर है. सो यहाँ फैक्टर हमारे फिनिश हो जाएंगे. अंडरस्टूड. द नेक्स्ट टॉपिक वी विल स्टडी इन द नेक्स्ट लेक्चर इज द टेम्परेचर. तो उसमें भी हम फैक्टर्स और ये सब पढ़ेंगे. लॉन्जिट्यूड्स एंड या लॉन्गिट्यूड्स एंड लैटिट्यूड्स. सबसे पहले पढ़ते हैं लैटिट्यूड्स. ज़्यादातर मैंने अभी आपको सारे कंसेप्ट्स बता ही दिए हैं. देयर इज अ टर्म नोन एज ग्रेट सर्कल. अभी CAPF में एग्जाम में आया था, व्हाट इज अ ग्रेट सर्कल. NCERT की चीज़ है पर बहुत सारे लोग भूल जाते हैं. ग्रेट सर्कल वो होता है दैट इज द लॉन्गेस्ट सर्कल दैट कैन बी ड्रॉन ऑन द अर्थ. सो ग्रेट सर्कल अगर लॉन्गेस्ट सर्कल है तो ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता. वो हमेशा सेंटर से ही पास होना पड़ेगा, चाहे ऐसे बना लीजिए, चाहे ऐसे बना लीजिए, चाहे ऐसे बना लीजिए. सो दीज आर ऑल द ग्रेट सर्कल्स. कितने भी बन सकते हैं भाई. वन ऑफ द ग्रेट सर्कल इज इक्वेटर, 0 डिग्री. अर्थ का टिल्ट नॉर्मल के साथ कितना है? 23.5 डिग्री. लैटिट्यूड्स आर यूज्ड टू मेजर द डिस्टेंस. हर एक किलोमीटर पे, नॉट किलोमीटर पे, हर एक डिग्री पे हम एक लैटिट्यूड ड्रॉ कर सकते हैं. तो 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री ऐसे करके वी हैव द फेमस ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न इन सदर्न रीजन. ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री नॉर्थ, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 23.5 डिग्री साउथ. और क्या हो गया, बच गया. लैटिट्यूड्स 1 डिग्री और 2 डिग्री के बीच में कितना किलोमीटर का गैप होगा? 1 किलोमीटर. सो द डिस्टेंस बिटवीन 2 लैटिट्यूड्स विल बी
टू कंसेक्यूटिव लैटिट्यूड्स, अच्छी ज़्यादा टर्म होगी, कंसेक्यूटिव लैटिट्यूड्स इज 111 किलोमीटर एंड दीज आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम वन अनदर, हर एक डिग्री पे हम नाप रहे हैं. These latitudes will signify the shortest distance between any two. ये लैटिट्यूड्स की नहीं हुई, ये ग्रेट सर्कल के बारे में बात होगी. कोई भी आप ग्रेट सर्कल बना लेंगे सो इट विल सिग्निफाई द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स ऑन अर्थ. तो ये भी आप एक चीज़ याद रखना. एवरी ग्रेट सर्कल विल कट द अर्थ इनटू 2 हाफ्स, ये एक और उसका पॉइंट है. तो ये सब चीज़ आई थी CAPF में. कितने हैं ये? 181 इन नंबर. गिन लीजिए पूरा 181 होगा इंक्लूडिंग द इक्वेटर. इधर भी 2 और सर्कल होता है, 66.5 डिग्री नॉर्थ, 66.5 डिग्री साउथ. दिस इज नोन एज आर्कटिक सर्कल क्योंकि आर्कटिक के पास है. दिस इज नोन एज एंटार्क्टिक सर्कल. व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ लैटिट्यूड्स? First of all, they are used to measure distance. Second of all, we have seen now the journey of the earth. If you can notice one thing, our sun, the apparent movement of our sun doesn't go beyond this Tropic of Cancer and Capricorn. इसके beyond वो नहीं जा पा रहा, मतलब बस वो इधर ही घूमे जा रहा है बस पूरे revolution में. It means the region between the tropics will experience the overhead rays of the sun at least 2 times or twice a year. तो twice a year at least क्यों? बस twice a year ही आएगी. जो भी ये पूरा रीजन है, हर एक पॉइंट पे अर्थ की सीधी वर्टिकल किरणें 2 टाइम आएंगी एक साल में. इनके बियॉन्ड सन की अपेरेंट मूवमेंट कभी नहीं होगी. तो सन के ट्रॉपिक्स के ही इधर उधर घूमेगा. अंडरस्टूड? व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ आर्कटिक एज वेल एज अंटार्कटिक सर्कल्स या पोलर सर्कल्स? इफ वी गो बियॉन्ड दिस पोलर सर्कल्स वी विल एक्सपीरियंस अ डे और नाइट ऑफ मोर देन 24 hours. Understood? So this is the significance of polar circles as well as tropics. What is latitudes? अब ये छोटी मोटी चीज़ें तो बताने की ज़रूरत नहीं है ना कि लैटिट्यूड्स आर द इमेजिनरी लाइंस विच आर ड्रॉन इन पैरेलल टू द इक्वेटर. तो ये सब छोड़ देते हैं. द नेक्स्ट बिग थिंग इज द लॉन्जिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स. अब ये कैसे होते हैं भाई? ये ऐसे होते हैं. अब बना के दिखा देता हूँ क्या. तो ये पोल है, इंक भी ख़त्म हो गई. ये भाई कुछ ऐसे होते हैं. सो दीज आर ड्रॉन फ्रॉम पोल टू पोल. अगर ये पोल टू पोल ड्रॉन है, you can notice 2 things. First, they are not equidistant. The longest distance between 2 longitudes is at equator, and the shortest distance, that is 0 kilometer, is at poles. So these information is suffice to tell us that these longitudes will not be used in the measurement of distance. So ये हमारा पहला conclusion था. तो क्यों बनाते हैं हम? अच्छा, वापस डेफिनेशन बतानी पड़ेगी क्या? लॉन्जिट्यूड्स आर द इमेजिनरी लाइंस ड्रॉन फ्रॉम पोल टू पोल. तो ये आप देख लेना. सो नाउ ये तो श्योर है हमारे पास, दीज आर नॉट फॉर द मेजरमेंट ऑफ द डिस्टेंस. सो नाउ व्हाट आर देयर सिग्निफिकेंस? दीज आर यूज टू कैलकुलेट द टाइम. अब वो कैसे होता है तो वो देख लेते हैं हम ज़रा. अर्थ घूम रहा है 360 डिग्री. कितने घंटे में? 24 में. 24 घंटे में हम मिनट में निकालेंगे, इंटू 60 कर लो तो आपके पास आएगा 4 एक तो याद था पर अब देख लेते हैं.
1 डिग्री इक्वल टू 4 मिनट्स। अगर आप ये कैलकुलेशन कर लोगे तो आपके पास क्या आएगा, 1 डिग्री 4 मिनट में घूम रहा है, ये पूरा 1 हो जाएगा, ये पूरा 4 हो जाएगा, इक्वल टू के उस साइड ले जाओगे तो आ जाएगा 1 डिग्री इक्वल टू 4 मिनट्स। पर हम घंटे में निकाल लेते हैं तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। 15 डिग्री इक्वल टू 1 आवर। 4 मिनट को हमने 1 घंटा बना दिया, तो हमको यहाँ 60 मिनट बनाना था, तो आप वो कैलकुलेशन कर लेना। 15 4 जा 60, ये हमने निकाल लिया। और ये निष्कर्ष आप याद कर लीजिए, नहीं तो इसमें टाइम वेस्ट होगा आपका एग्ज़ाम हॉल में। अब देखिए, यहाँ हम बना सकते हैं वर्ल्ड मैप, बट क्यों टाइम वेस्ट करना है। यूएसए में वी आर हैविंग मॉर्निंग ब्रेकफास्ट, हेयर वी आर हैविंग आवर लंच। इसको कहते हैं ग्रीनविच मीन टाइम। ग्रीनविच मीन टाइम मतलब यहाँ जब 12 बज रहे होते हैं तो यहाँ से 5 साढ़े 5 घंटे पीछे यहाँ हम जाएंगे, और यहाँ से प्लस 5:30 GMT ग्रीनविच मीन टाइम हमारा आता है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, दैट इज़ 82.5 डिग्री ईस्ट। यूके से हम ईस्ट में, तो 82.5 डिग्री ईस्ट इस कैलकुलेशन से आया है। हमने एक लॉन्जिट्यूड चूज़ कर लिया कि भाई ये हमारा टाइम जोन होगा, विच इज़ पासिंग थ्रू मिर्ज़ापुर ऑफ यूपी। तो यूपी से पास हो रहा है, एमपी से पास हो रहा है, छत्तीसगढ़ से पास हो रहा है, उड़ीसा से पास हो रहा है, एंड आंध्रा से पास हो रहा है। यहाँ से हमारा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम पास हो रहा है। तो ये हमने अज्यूम कर लिया इंडियन गवर्नमेंट ने कि 82.5 डिग्री ईस्ट है हमारा, तो हमने इस फॉर्मूले में फिट कर दिया। तो हमारे पास आया कि हमारा टाइम यूके के टाइम से प्लस 5:30 GMT होगा। मतलब यहाँ अगर 12 बज रहे होंगे तो हमारे यहाँ 5:30 बज रहे होंगे, और 4:30 5:30 बजे हम क्या करते हैं, मोस्ट ऑफ इंडियंस इवनिंग टी। सो ये चीज़ है। नाउ बहुत ही जो प्रीलिम्स ओरिएंटेड फैक्ट है अब वो देखते हैं। मान लीजिए इन द फ्यूचर वी हैव द लाइटनिंग स्पीड व्हीकल, द व्हीकल विच कैन एक्सेलरेट एट द स्पीड ऑफ लाइट। अर्थ गोल है, भाई स्फीयर है। इफ़ यू आर नॉट अ फ्लैट अर्थर, फ्लैट अर्थर हो अगर आप बिलीवर हो तो क्या कर सकते हैं। सो दिस इज आवर इंटरनेशनल डेट लाइन। सो ये हमारी इंटरनेशनल डेट लाइन है। ये बेरिंग स्ट्रेट, अलास्का है, रशिया है, उसके पीछे बेरिंग स्ट्रेट है, वहाँ से हमारी इंटरनेशनल डेट लाइन पास होती है जिगजैग फॉर्म में। इसके उधर आ जाएगा हमारे पास वापस क्या आ जाएगा, अलास्का। यहाँ लास्ट में हमारे पास क्या आता है, इधर नीचे इंडिया आएगा तो रशिया। मान लीजिए एक हमारे पास फ्यूचर में टेक्निक आ गई, व्हीकल आ गया विच हैज़ द स्पीड ऑफ लाइट। यहाँ यूएसए में खड़ा है भाई वो, क्योंकि हर चीज़ यूएसए में होनी है, एवेंजर्स भी यूएसए के हैं, यूएसए में खड़ा है। एंड अगर हम उस व्हीकल को चला रहे हैं तो वी आर हैविंग आवर मॉर्निंग ब्रेकफास्ट। लाइटनिंग स्पीड से उसमें बैठ के हम उसी टाइम कहाँ पहुँच गए, यूके में। एंड टू आवर सरप्राइज वी आर एक्सपीरियंसिंग दैट यूके सिटीजन्स आर हैविंग देयर लंच। हम लोग चलो ठीक है, ये हमको अच्छा सरप्राइज मिला। नाउ अगेन वी विल हॉप ऑन आवर व्हीकल, लाइटनिंग स्पीड, वी विल लैंड इन इंडिया। नाउ टू आवर सरप्राइज अगेन वी विल सी द इंडियंस आर हैविंग द इवनिंग टी। तो हम बहुत ही कंफ्यूज हो गए, भाई ये हो क्या रहा है, बिकॉज वी डोंट नो दिस थ्योरी। अब देखिए असली चीज़, यहाँ वापस बैठ के लाइटनिंग स्पीड से ऐसे नहीं जाएंगे हम, वी विल क्रॉस द इंटरनेशनल डेट लाइन। लाइटनिंग स्पीड है तो वापस इधर आ गए, यही तो है इंटरनेशनल डेट लाइन। अलास्का में आए, वापस यहाँ आ गए। नाउ अगेन अगर हम शादीशुदा हैं तो अवर
बीवी एंड बच्चे आर हैविंग द सेम ब्रेकफास्ट ऑन द सेम मॉर्निंग। तो भाई ये क्या है, हमने कोई टाइम ट्रैवल किया है क्या? क्योंकि हम यहाँ तक जब हम इंडिया में आए तो इवनिंग हो रही थी, बट हमने इंटरनेशनल डेट टाइम पार की तो ये वही मॉर्निंग मिली हमें जो हम छोड़ के गए थे। सो ये तो टाइम ट्रैवलिंग हो गई। एंड येस, इट इज़ अ कंसेप्ट ऑफ टाइम ट्रैवलिंग ओनली, अगर कोई स्पीड ऑफ लाइट का व्हीकल आ गया तो, बट वी डोंट हैव दिस पर्टिकुलर व्हीकल। सो हैंस प्रीलिम्स में ये फैक्ट आएगा, इफ अ पर्सन हैज़ टेकन ऑफ फ्रॉम द जापान, क्रॉस्ड द इंटरनेशनल डेट लाइन and landed in Alaska, then he will lose a day or gain a day। तो अभी हमने देखा भाई, जब हम अपने लाइटनिंग फास्ट व्हीकल में बैठे थे तो हमने पूरा दिन ख़त्म कर लिया था, और पर फिर भी हम उसी दिन में वापस सुबह मॉर्निंग में आ चुके हैं। इसका मतलब वी आर गेनिंग अ डे। पूरा दिन हमने जी लिया और फिर से हम उसी मॉर्निंग में आ गए, द मॉर्निंग दैट वी हैव लेफ्ट इन आवर लाइटनिंग स्पीड व्हीकल। It means if one goes from Japan, crosses the international date line, and it will land in Alaska, then he will gain a day। और इसका उल्टा रिवर्स, if someone boarded from Alaska, crosses the international date line, and then land in the India, then he will lose a day। यहाँ से मॉर्निंग में निकला है और यहाँ का पहुँच रहा है इवनिंग में, वही लाइटिंग स्पीड व्हीकल निकालिए, यहाँ से निकालिए, और कहाँ पहुँच रहा है? इवनिंग में, इसी दिन की इवनिंग में पहुँच जा रहा है। टाइम ट्रैवलिंग, अंडरस्टूड? माइंड यू, प्लीज़ रीड द इंग्लिश लैंग्वेज ट्वाइस। पेपर की बात कर रहा हूँ, नहीं, जो भी प्रीलिम्स में देगा, प्रीलिम्स में ये दो तरीके से दे सकता है। एक तो मैंने आपको जो समझाया पूरा ऐसे दे देगा कि अ मैन हैज़ बोर्डेड फ्रॉम इंडिया, क्रॉसेस इंटरनेशनल डेट लाइन, लैंडेड इन अलास्का, ही विल गेन अ डे और लूज अ डे। तो ये आपको समझ में आ गया। एक बोल सकता है, इफ अ पर्सन will move from west to the east of international date line, then he will। तो देखिए, उसने इंटरनेशनल डेट लाइन को रेफरेंस लिया है, सो वी विल ऑल्सो टेक द इंटरनेशनल डेट लाइन एज रेफरेंस। इफ अ मैन मूव्स फ्रॉम द वेस्ट टू द ईस्ट ऑफ द इंटरनेशनल डेट लाइन, दिस इज वेस्ट, दिस इज अवर ईस्ट, to the international date line, he will gain a day। So this was all regarding today's class। hope so आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। बहुत कोर कंसेप्ट्स थे ज्योग्राफी के। in the next lecture we will study the topic of temperature। till then if your concepts are getting cleared, please like this video, share it with your friends and subscribe to our YouTube channel। तब तक के लिए गुड बाय एंड जय हिंद।